Good morning, my dear student, and welcome in accountancy class of 5th October 2020. Today is Monday, and I have told you earlier that I will make a YouTube video for this chapter also. And we have already discussed about this chapter in class of 3rd October 2020 via Google Meet. Now, I am taking the PDF book of T.S. Griwal for explaining the chapter 1 of part B. As I told you earlier in Google Meet class that in this chapter it carries only 4 marks for examination purpose, and that 4 marks will be the only one question from that this chapter, and that is to identify the items where it goes in balance sheet and financial statement of a company. And in Google Meet class I had also told you that please learn the item wise presentation in balance sheet as well as in financial statement. For this you have to learn what is balance sheet format and what is financial statement of a company's format, and this is a long format which has been explained in NCERT book, and that's also that type of explanation is also in this chapter also. You will find in the here also in T.S. Griwal book. You can see over here that it is shareholders fund, share capital reserve and surplus, and money against the that I told you that is not in syllabus or syllabus, but you have to learn as you know you have to remember the items of balance sheets. So shares, application, money pending allotment, this also we don't have to study. Then non-current liabilities, long-term borrowings and deferred tax liabilities, this also don't have to study, but you have to remember these are the items which comes in vertical format of balance sheet. Okay, and the asset side you are seeing over here that asset side past. Now, what is the main purpose of this chapter? That you have to learn where the items goes in balance sheet. Okay, see format of balance sheet. This one is format of balance sheet, the same as we taught in NCERT book, and this is the format of statement of profit and loss. In class 11 what we have studied, the financial statement of sole proprietorship and in partnership also. The balance sheet format of statement of trading profit and loss account. Trading profit and loss account is known as financial statement 1, and balance is the another part of financial statement, balance sheet. Okay, so in balance sheet what we have just seen, that this is known as vertical format. Vertical format means first you have to write equities and liabilities in columnar form. There is 2 columns. First one is for current year and another one is for previous year. Then you have to write asset side. This is total of liabilities, then asset, and this one is total of assets. We'll find that total of assets will equal to total of liabilities. Now in this also profit and loss account, this one is first one is revenue from operation, which is known as sales. In class 11 sales. अदर इनकम मीन्स अदर दैन सेल्स, यानी सेल्स को छोड़कर जो और इनकम होता है वो हो गया. दिस इज द टोटल रेवेन्यू 1+2, यानी कि 1+2 को जोड़ने पर जो आया ये टोटल रेवेन्यू हो गया. सबसे पहले हम लोग ये लिखना होगा कि कंपनी का टोटल रेवेन्यू क्या है. ये कंपनी का बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है. उसके बाद हम लोग इसमें से एक्सपेंसेस घटाते जाएंगे. फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का घटा दीजिए, देन परचेज का घटाइए, एंड चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड, यानी कि जितना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसको बोलते हैं वो घटा दीजिए. वर्क इन प्रोग्रेस जो वो घटा दीजिए. अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो वर्क इन प्रोग्रेस उसी को बोलते हैं, घटा देंगे. फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को घटा देंगे. फाइनेंस कॉस्ट यानी जो भी हमने डिवेंचर वगैरह का इंटरेस्ट पे किया वो सब घट जाएगा. डेप्रिसिएशन घट जाएगा. एंड फाइनली अदर एक्सपेंसेस को, सारा अदर एक्सपेंसेस को उसका हेड में डाल के घटा देंगे. ये टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा ये वाला.
यानी आप देख रहे हैं ये टोटल इनकम हो गया और ये जो है ये टोटल एक्सपेंसेस हो गया। तो टोटल इनकम में अगर एक्सपेंसेस को हम लोग माइनस कर दें तो देन वी हैव प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वाला आएगा, एंड देन लेस टैक्स, इसमें से टैक्स घटा देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही हमारा जो है ये फॉर्मेट है। तो यू हैव टू लर्न इट नाउ and you can see over here the everything is has been given. Now what is the main purpose of teaching this one from this T.S. Griwal book is to ease understanding or to ease in writing, or you can say to ease in seeing the items over here and main head and subhead, which is the main part of question paper also. There in question paper we'll see that the this one is items are given, 4 items are given, and you have to identify the major head and subhead. main head means major head और subhead. subhead means ये main के अंदर में जो subhead आएगा वो हमें लिखना है। तो आप देखिए यहाँ से शुरू किया है कि डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, सिक्योरिटीज, प्रीमियम रिजर्व, एंड यू कैन सी सारा चीज़ जो है इसमें दिया है आपको। तो आप यहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं। ये देखिए 29 आइटम यहाँ पे है, 29 आइटम को यहाँ पे दिया है, मैंने फिर 30 से जो चालू किया है आप देख सकते हैं ये पहुँच गया है 69 आपको दिया है, 69 आइटम्स दिया है कि जिसको कि आपको बताना है कि ये 69 आइटम्स की है, इसका मेजर हेड और करंट सब हेड क्या है। और ये सारे बैलेंस शीट के आइटम है, रिमेंबर ये सारे बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन आ चुका है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहाँ जाएगा, प्रपोज डिविडेंड कहाँ जाएगा, और ये सब जो है आपको आ चुका है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स भी आ चुका है, होगा कहीं पर। देखिए गुडविल भी आ चुका है, एक्रूड इनकम्स भी आ चुका है, सब्सिडी रिजर्व भी आ चुका है। ये सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में सारा कुछ आ चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसी में से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का कहीं से भी आने का चांस है। तो आप अपने हिसाब से ये दोनों बुक आप देख लीजिएगा, मैं इसको भी शेयर कर दूँगा आज आपको, ये बुक भी, इसका जो सेकंड पार्ट है, ताकि आप इससे भी आप पढ़ सकें। और एनसीईआरटी तो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों से, और एनसीईआरटी तो आप इजीली एनसीईआरटी से वेबसाइट से डाउन कर सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत अच्छा है कि अगर डिस्काउंट ऑन ईसॉप डिबेंचर नहीं दिया है, बिकॉज ये डिस्काउंट ऑन ईसॉप डिबेंचर तो अब आने वाला ही नहीं है। अब आइए, ये आइटम भी कभी कभी पूछता है, हालांकि इसका ट्रेडिशन नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी से कुछ पूछे, यानी जिसको कि हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं वहाँ से, लेकिन फिर भी ये देखिए इसमें तो 2 ही हेड है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस बस। प्रॉफिट तो अपने आप में एक आइटम है, तो ये आपको रेवेन्यू यानी कि सारा इनकम कहिए, और रेवेन्यू में कहाँ जाएगा, अदर इनकम, ये सब तो दिखा हुआ है। एक्सपेंसेस, ये सारा एक्सपेंसेस है। एंड देन आपको ये क्वेश्चन है कि हम ये आइटम्स को बोलता है कहाँ, जैसे माइनिंग राइट्स, ये आ चुका है एग्ज़ाम में, ये भी आ चुका है, और ये वाला नहीं आया है। ये दोनों का आपका आंसर दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है जहाँ पे आपको अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, कहाँ जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना तो कम से कम कर सकते हैं कि ये लायबिलिटीज़ है या एसेट्स है, और लायबिलिटीज़ में भी है तो नॉन करेंट है या करेंट लायबिलिटीज़ है, और अगर असेट्स है तो नॉन करेंट असेट्स है या करेंट असेट्स या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो मान लीजिए कि आपको दे दिया कि गोल्ड क्या है, गोल्ड, कंपनी में गोल्ड है बहुत सा, तो गोल्ड को आप कहाँ रखिएगा। तो आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और हालांकि गोल्ड में जब हम लोग गोल्ड में जब भी हम लोग पैसा लगाते हैं तो एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही लगाते हैं कि मार्केट में जब इसका वैल्यू हाई होगा तो हम बेच देंगे। तो गोल्ड जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, वो भी है। प्रीशियस मेटल्स है, उसको भी ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है, प्रीशियस मेटल्स, हाँ। तो वो हो गया। आपको ये क्वेश्चन दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ वेस्टकोट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो ये आपको इतना दे दिया आइटम, ये इसीलिए दिया है
कि आपको समझ में आए कि कौन आइटम कहाँ जाएगा और किस तरह से कंपनी का ये बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हालांकि ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी कि आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता है कि ये आइटम दे दिया जाए और इससे आपको बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन चलिए CBSE का कोई भरोसा नहीं, बहुत छोटा सा आइटम करके दे भी सकता है ट्राई करने के लिए स्टूडेंट को। तो वो हो गया आपको, ये हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड देन आपको अनसॉल्व क्वेश्चन कहा गया, तो ये भी मैं आज आपको शेयर कर दूंगा ताकि इससे आपको पढ़ने में आसानी हो। अब हम लोग चैप्टर 2 यानी पार्ट बी का ही चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसमें हमें बस यही कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ना है। कॉमन साइज क्या है और कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है, यही दो पढ़ना है हमको। और मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आता है, वो 4 मार्क्स का आता है। तो हालांकि इसमें थ्योरी का पार्ट है, केवल थ्योरी है कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जस्ट आगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। यस दिस वन इज टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हैं, इसको पढ़ना है। तो आप इसमें देखिए वंस अगेन पूरा थ्योरी है कि ये क्या होता है, कैसे बनता है। तो अभी तक का जो ट्रेंड्स है वो आपको क्वेश्चन पूछता है कि कंपैरेटिव बनाइए, और तो नहीं देता था पहले, यानी दोनों में से कोई एक आ जाता था, कंपलसरीली उसको बनाना पड़ता था। लेकिन जब से ये इसका 20 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यू कैन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंटर किया है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में, तब से वहाँ पे दे दिया है कि आपको और का क्वेश्चन का संख्या बढ़ाना पड़ेगा। और ये सब CBSE इसीलिए कर रही है कि ताकि बच्चों का नंबर आए, क्योंकि ये अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि ये पाया गया है कि अधिकतर बच्चों का मार्क्स लेस देन 50% होता है। अगर जिसका मार्क्स 50% से ज़्यादा आ रहा है तो वो सीधे आपको पढ़ने वाले बच्चे के स्टूडेंट में चले जाएंगे लिस्ट में। वो आप सीधे वहाँ पे आप कर सकते हैं कि जिन बच्चों का मार्क्स मोर देन 50% आ रहा है, इसका मतलब वो बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर जिस बच्चे का मार्क्स 30 to 50% के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो काफ़ी मेहनत करते हैं पास करने के लिए। और बहुत लोगों का मार्क्स आई विल से दैट कि एनालिसिस अगर आप कीजिएगा कॉपी चेकिंग का, तो आप पाइएगा कि ओवर 50%, यानी हर स्कूल में आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो पास नहीं कर पाते हैं, यस आपने सही सुना। तो उसको भी करने के लिए भी CBSE ने क्या किया कि कुछ और नंबर ऑफ और का संख्या बढ़ा दिया ताकि लोगों के बच्चों के पास चॉइस हो। तो उसमें अब ये कर दिया है कि आपको कंपैरेटिव और दोनों में से एक चूज़ करना है। तो वो चूज़ के हिसाब से भी आप अपने हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है, तो आप देख सकते हैं ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये फॉर्मेट जो है ये आपको लर्न करना है। और जनरली ये एक कंपैरेटिव देखिए बैलेंस शीट ही देता है अधिकतर, लेकिन कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी दे सकता है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको याद रखना है ये दो बातें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में 2 पार्ट आता है, 2 चीज़ आता है। एक आता है जैसे क्लास 11 में मैं बताता हूँ, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पार्ट बनता था, दूसरा पार्ट बनता था बैलेंस शीट, और जो भी एडजस्टमेंट होता था उसका 2 जगह एंट्री होता था। यानी एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक जगह कहीं पे होगा, और दूसरा जो जगह होता है वो बैलेंस शीट में होता है कहीं एक जगह। और अगर आप 2 जगह नहीं करते हैं उसका, तो वो ट्रीटमेंट से इनइक्वालिटी पैदा होता है, यानी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। उसी तरह सेम जो है कंपनी का भी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट ही देता है। तो कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानिए। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तुलना करना हम किन 2 साल के बीच के फिगर्स का तुलना करते हैं कि पिछले साल क्या फिगर्स था और आज के साल में क्या फिगर है। यही कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं,
तो उसमें आपको यही मिलेगा कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का आपको फिगर मिलेगा, उसके बाद इस साल का फिगर मिलेगा। जाहिर सा बात है कि हर जगह हर कंपनी यही चाहता है कि जो इस साल का जो प्रॉफिट है, करेंट ईयर का जो प्रॉफिट है, वो पिछले साल के प्रॉफिट से थोड़ा ज़्यादा हो, तब हम लोग समझते हैं कि ग्रोथ है। तो इसीलिए इसको जो है आप देखिए, ये पर्टिकुलर्स जो है ये आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिलेगा। ये देखिए आप, ये सारा आपको बताया गया कि पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज होगा, फिर शेयर होल्डर्स फंड होगा, फिर शेयर कैपिटल होगा, उसके अंदर ये होगा, ये सारा आपको बता दिया गया है। एंड देन रिजर्व एंड सरप्लस होगा। इसमें बहुत अच्छा कि आप देखिए, इसमें सिलेबस में जो नहीं है उसको हटा दिया है यहीं पे। फिर आपको नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में आपको ये दोनों आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर आपको करेंट लायबिलिटीज़ में जनरली यही सब आता है, उसके बाद टोटल हो गया। सिमिलरली असेट साइड में आप देखिएगा तो नॉन करेंट असेट्स में आपको फिक्स्ड असेट्स है, फिक्स में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ गया, नॉन करेंट, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, आपको करेंट। ये सारा जो दिया है ऐसा ही जो है जनरली आपको पढ़ना है, इसीलिए अच्छा से बना के आपको दे दिया है। अब आपको करना क्या है, ये नोट नंबर भी आप जानते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कहूँगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। केवल आप देखिएगा कि जो बैलेंस शीट में है उसमें करेंट ईयर यहाँ पे होता है CY, और प्रीवियस ईयर यहाँ होता है, यानी जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें आप पाइएगा। लेकिन जब आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाइएगा तो इसको आप उल्टा कर दीजिएगा, यहाँ इसको यहाँ लिख देंगे और इसको यहाँ लिख देंगे, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। ये मान लो कि पिछले साल में आपको 1 लाख रुपए यहाँ पे कुछ कोई भी फिगर 100 ही है, मान लो पिछले साल 100 है और अभी हो गया 103। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल की तुलना में ये 3 बढ़ गया है, क्योंकि इजी है देखना, बहुत आसान है। क्योंकि जब हम पिछले साल वाला लिखेंगे या पहले लिखेंगे तो इससे समझना भी बहुत आसान है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर को यहाँ पे पहले लिखते हैं। मान लो ये पहले 100 था, अब 98 हो गया, तब भी बहुत आसान है कि यहाँ 2 घट गया है ना। लेकिन अगर इसको हम उल्टा करके लिखें, यहाँ पे 98 जो है करेंट ईयर वाला, यहाँ 100 लिखें, तो फिर हमें उल्टा देखना पड़ेगा कि 100 से 98 ऐसे हुआ। इसीलिए इसको आप याद रखिएगा कि ये बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट बनता है यहाँ पे कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पहले आता है और करेंट ईयर बाद में होता है। और बैलेंस शीट का जो ओरिजिनल फॉर्मेट है इसमें उल्टा है, जस्ट करेंट ईयर पहले आता है देन प्रीवियस ईयर आता है। तो ये चीज़ है, और उसको यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको बैलेंस शीट का ही आइटम मिल जाएगा, यानी कि क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अब आपको बस यही 2 कॉलम उसमें आंसर में आपको अटैच करना है, और ये है एब्सोल्यूट चेंज, यानी कि क्या चेंज हुआ। चेंज के नीचे आपको इंक्रीज और डिक्रीज लिख देना है, या तो पिछले साल से फिगर बढ़ा होगा या पिछले साल से फिगर घटा होगा, यही 2 चीज़ हो सकता है। और अगर बराबर है तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। तो ये एंड देन आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज को कैसे निकालेंगे, तो ये जो कॉलम ये वाला जो है ये आपको करके बता दिया है कि आप कैसे निकालेंगे। ये प्रीवियस ईयर का फिगर को A माना है, करंट ईयर फिगर को B माना है, और C को माना है कि चेंज आया है, चेंज यानी इंक्रीज और डिक्रीज C है। C जो है, C को निकालने का तरीका बताया है कि C को आप निकालिएगा तो B यानी ये वाला जो फिगर है करंट ईयर का फिगर है उसमें से प्रीवियस ईयर का फिगर यानी ये वाला फिगर जो है माइनस कर दीजिए, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि यहाँ पे 100 है छोटा फिगर में और यहाँ पे 103 है, पकड़ लो, तो यहाँ चेंज हो जाएगा 3। और अगर परसेंटेज निकालना हो तो बहुत आसान है, यानी ये जो D है ये परसेंटेज माना है, और परसेंटेज निकालने के लिए आपको C यानी कि ये जो चेंज आया है ये वाला, ये C पहले लिखिए, उसके बाई A, और A यहाँ है आपको A, और इंटू 100 कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे 3% आ जाएगा, सिंपल सा। सिमिलरली अगर आपके यहाँ मान लो 100 है, मान लीजिए कि आपको आसानी के लिए मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल करता हूँ, ये 1000 है मान लो, यहाँ पे इस बार 980 आ गया, देन आपको 20 डिक्रीज़ हुआ है, तो ये डिक्रीज़ का निगेटिव यहाँ पे आपको लगा दीजिएगा कि ये घट गया है, इसका मतलब निगेटिव मतलब घट गया है। और इसका परसेंटेज अगर आप निकालिएगा तो -20/1000 इंटू 100 हम लोग करेंगे अगर इसको, तो ये 0 0 2 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आएगा 2%, वो भी निगेटिव, यानी 2 ऐसे आएगा, ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा -2%। तो सिंपली आप इसी तरह से आप जो है सारा फिगर्स का, यानी सारा फिगर्स कहने का मतलब पहले इसका निकालिएगा एक फिगर का, फिर इसका निकालिएगा, फिर इसी तरह इसका निकालिएगा, और जो जो फिगर दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का इसी तरह आप निकालते जाइएगा। तो ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली जो मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी है इसी तरह से निकालेंगे। अब देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक आपको क्वेश्चन का पार्ट मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक, ये जो आपको लर्न करना है वही पार्ट है कि पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, फिर अदर इनकम होगा, फिर टोटल रेवेन्यू होगा, देन एक्सपेंसेस आएगा, एक्सपेंसेस में ये सब आता है, और सबको फॉर्मेट के हिसाब से आपको घटाना और बढ़ाना है। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, तो जैसा फॉर्मेट में लिखा है उसी तरह से आपको करना है। बस अगेन इसमें जो इसका फॉर्मेट दिया है आपको, देखिए कॉमन साइज अगर प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हो तो ये क्वेश्चन का ही हिस्सा है यहाँ तक। इसमें भी पहले प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर लिखेंगे, ठीक है। और जो होता है जो एक्चुअल में अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा तो इसमें भी आपको पहले करेंट ईयर मिलेगा, देन बाद में पी वाई मिलेगा, यानी यहाँ सी वाई एंड यहाँ पी वाई। लेकिन जब कंपैरेटिव बनेगा, जब कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा तो उसमें पहले आपको पी वाई एंड देन सी वाई मिलेगा, एकदम बिल्कुल उसी तरह से। प्रीवियस ईयर जो 100 है और करेंट ईयर में 100 है, जो क्या है आपको लिख देना है, और देन आपको ये कॉमन साइज स्टेटमेंट है यहाँ पे इसी तरह से, यानी पहला फिगर ए मानेंगे, दूसरा बी मानेंगे, तीसरा सी मानेंगे, और सी निकालने के लिए हमको बी में से ए को घटाना पड़ेगा, और फिर हमको डी निकालना है, यानी परसेंटेज। डी के लिए फार्मूला है C/A/100। ठीक है, ये निगेटिव भी हो सकता है, बहुत आसान होता है। और ये कॉमन साइज है, कॉमन साइज को अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह ये कंपैरेटिव है। ये देखिए आपको क्या दिया है, ये कॉमन साइज बैलेंस शीट दिया है। चलिए एक सॉल्व्ड एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पर, ये आपको दिया है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जांपल है। तो ये जो है यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, और इसमें आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि आपको सॉल्व करके नहीं दिया है, देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे। यानी सबसे पहले आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखिए, देन अदर इनकम लिखिए, देन टोटल रेवेन्यू लिखिए, एंड देन इसमें से एक्सपेंसेस जो आया है इसको घटाइए, एंड देन टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा, देन आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, देन इसमें से इनकम टैक्स घटाइए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपको लर्न कर लेना है। लेकिन एग्ज़ाम में आज तक ऐसा बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं दिया है। अब देखिए ये 4 मार्क्स का कुछ लिहाज से ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसको अगर हम करें सारा फिगर्स को कैलकुलेट करें तो ये सामान्य स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा है। तो ये केवल अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है, जनरली आपको यही देता है, छोटा सा दे देता है। ये देखिए ये आता है, ऐसा ही आता है, बहुत छोटा सा आएगा कि इसमें 2-4 आइटम होता है, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, देन अदर इनकम हो गया, टोटल रेवेन्यू, देन एक्सपेंसेस, देन प्रॉफिट। और बहुत ज़्यादा दिया तो लेस टैक्स दे देता है, एंड देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन एकदम आएगा। जैसे 3 फिगर दिया, फिगर भी बहुत आसान है। प्रीवियस ईयर में 24 लाख था, अभी 40 लाख है, 16 लाख बढ़ गया। पहले 18 लाख था, अभी 21 लाख है। पहले 14 लाख था, 2 लाख। आप सब देखिए, आउटसाइड दिल्ली 2013 का क्वेश्चन है CBSE का। और आप परसेंटेज भी इसमें बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग है तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, है ना। आप देखिए इसको यहाँ पे 24 लाख लिखा है, यहाँ 40 लिखा है, 16 लाख बढ़ गया, परसेंटेज तुरंत आप निकाल सकते हैं, इतना बढ़ गया। देन 18, देन 24, 6 बढ़ गया, तो ये परसेंटेज निकाल सकते हैं। देन टोटल रेवेन्यू अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो 42 आएगा, इसको ऐड कीजिएगा 64 आएगा। तो आप देख सकते हैं 42 से 64, 22 लाख बढ़ गया है। फिर परसेंटेज आप जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, एंड देन एक्सपेंसेस घटा के प्रॉफिट उसी तरह सिमिलरली आपको निकालना है। देखिए हाँ, ये नाउ दिस क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। और देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे 10 लाख का 10 लाख ही है। यहाँ पहले 10 लाख था, अभी 11 लाख हो गया है। क्वेश्चन में याद रखिए, क्वेश्चन में आपको CY पहले मिलेगा, देन PY मिलेगा। लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन बनाइएगा तो याद रखिए पहले आपको यहाँ PY लिखना है, देन CY लिखना है, ठीक है। और ये कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है भी नहीं, ओके।
now in this question what? तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके बाद हम एनसीईआरटी किताब में चले जाएंगे और वहाँ से आपको हम बताएंगे कि आप किस तरह से जो है आप बना सकते हैं आप कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट, वहाँ से हम उठाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।